ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے اسلام پورہ ماچس فیکٹری میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی 14 سالہ لڑکے مجاہد کے گھر آمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مقتول بچے مجاہد کے ورثہ کو انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں کرائم بڑھنے کا بھی اعتراف کیا اور اس موقع پر آئی جی پنجاب راؤ سردار علی اور سی سی پی او کو بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مقتول بچے مجاہد کے ورثہ کی مالی امداد کا بھی اعلان کیا۔ پولیس کو ملزمان کے خلاف فوری اور مؤثر مضبوط چالان بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، بہت جلد مؤثر قانون سازی سے کم سن بچوں سے زیادتی کے واقعات کو کنٹرول کریں گے۔ پامالی کے واقعات ہوئے، میں کل کسی کو کہہ رہا تھا کہ یہ کیس ہے کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے کہ ہم نے کتنی آئینی پامالی کیے۔ ڈسکا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہے۔ بجلی کی بندش سے سخت گرمی میں شہریوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ ایک طرف کاروبار متاثر تو دوسری طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے کسان بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز عثمان حیدر۔ ڈسکا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک طرف آگ برساتا سورج ہے تو دوسری طرف بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ طویل تا طویل ہوتا جا رہا ہے۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 سے 10 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 سے 14 گھنٹے سے تجاوز کر چکا ہے، جس سے نہ صرف شہری اذیت کا شکار ہیں بلکہ کسان جو ہے ان کو بھی سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ڈسکا گدنوا میں دھان کی فصل کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ دھان کی فصل بونے کے لیے کھیتوں کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ان تمام معاملات میں پانی اور بجلی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کی عدم دستیابی سے فصل کی بر وقت کاشت جو ہے وہ ناممکن نظر آ رہی ہے۔ سارا دن اور ساری رات بجلی کا غائب رہنا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر نوٹس لیا جائے اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ اس جلسا دینے والی گرمی میں وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عثمان حیدر، میٹرو ون نیوز، ڈسکا۔ جڑا والا بھر میں بجلی کے بعد گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا۔ گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے امور خانہ داری انتہائی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں، شہری پریشان ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جی، تحصیل جڑاوالا میں بجلی کی طویل بندش کے بعد اب گیس کا بحران بھی شدت اختیار کر گیا ہے۔ گیس کی غیر اعلانیہ طویل بندش سے امور خانہ داری انتہائی متاثر ہو کر رہ گئے ہیں۔ گھروں میں کھانا بنانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ خواتین انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ گیس کا تو بہت زیادہ مسئلہ ہے، سردیوں میں تو آتی نہیں نا، اب گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں بھی اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب چولہا چلائیں تو گیس ہی نہیں ہوتی، دن کے وقت بھی چلی جاتی ہے اور رات کو تو وہ آتی نہیں نا، 9 بجے کے بعد 9 بجے کے بعد پوری رات ہی نہیں آتی گیس، جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو گیس نہیں ہوتی۔ اور دن میں کس ٹائم جاتی ہے؟ دن کے وقت آگے پیچھے بھی چلی جاتی ہے، اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے، لیکن 10 بجے کے بعد چلی جاتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ یہی اپیل کرتے ہیں ہم سب سے زیادہ، یہ بڑا مسئلہ ہے گیس کا، اس کو حل کریں، کیونکہ کھانا ہوتا ہے فیملی نے، بچوں نے، تو گیس کے بغیر تو کوئی حال نہیں ہے، یہ گیس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یہ حل۔ جڑاوالا سرکل میں دن اور رات کے اکثر اوقات میں گھروں کی سوئی گیس کی طویل بندش نے نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ گیس کی غیر اعلانیہ طویل بندش کی وجہ سے اس مہنگائی کے دور میں متعدد گھروں کا کھانا مہنگے داموں باہر ہوٹلوں سے منگوانا پڑتا ہے۔ عوام الناس کا ارباب اختیار اور اعلیٰ حکام سے گیس کی غیر اعلانیہ طویل بندش کو کنٹرول کرنے کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا اعجاز احمد، میٹرو ون نیوز، جڑاوالا۔ کہروڑ پکا میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید پریشان ہو گئے۔ شہر اور گرد و نواح میں 14 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے کاروباری طبقہ شدید متاثر ہو گیا۔ وہیں پر طویل لوڈ شیڈنگ سے گھروں میں پانی بھی نایاب ہو گیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین خان درند کی اس رپورٹ میں۔
कहरोड़ पका शदीद गर्मी और हबस में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहर में 12 से 14 घंटे और मजाफाती इलाकों में 16 घंटों की लोड शेडिंग। शहरियों ने हाथों में पंखे लेकर एहतजाज शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि दिन रात गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी और घरेलू जिंदगी शदीद मुतासर हो चुकी है। शहरी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम हो चुके हैं। हुकूमत महंगी बिजली समेत बेतहाशा टैक्सों की वसूलियों के बावजूद शहरियों को बिला तातुल बिजली की फराहमी नाकाम हो चुकी है। बिजली की हर रोज तवील बंदिश जैसी सूरत हाल ने मैपको के तरसीली निज़ाम का पोल खोल दिया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पका। रहीम यार खान में ममनुआ खुराक फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। फूड सेफ्टी टीम ने टिम्बर मार्केट में वाक़ किरियाने स्टोर पर छापा मारकर ममनुआ चाइना नमक और मिलावटी मिर्चें फरोख्त करने वाले मालकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। मजीद बताएं कि तर्जुमान फूड अथॉरिटी के रहीम यार खान किरियाना स्टोर पर भारी मिकदार में चाइना सॉल्ट की मौजूदगी पाई गई। टेस्ट के दौरान मिर्चों में रंग की मिलावट पाई गई और मजीद जांच के लिए मिर्चों के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। ममनू और मिलावटी खुराक फरोख्त करने पर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। फूड अथॉरिटी का कहना है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया है। SSP पेट्रोलिंग गुजरांवाला रीजन मोहम्मद वसीम डार ने ईद उल अजहा के मौके पर DSPs और इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट को संगीन जराइम की रोकथाम, महफूज शाहराहों और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहकामात जारी कर दिए। मोहम्मद वसीम डार ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि महफूज शाहराहें और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का अव्वलीन मकसद है। उन्होंने मजीद कहा कि व्यापारी हजरात की मंडियों तक रसाई को महफूज बनाया जाए। नौसरबाजों, जेब तराशों और दौरान पेट्रोलिंग मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए जराइम की रोकथाम और बेगनी के लिए तमाम अफसरान और जवान पर अपना अपना मौसर किरदार अदा करें। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की बढ़ती हुई कैटेगरी में पाकिस्तान के उभरते हुए ब्रांड फिटनेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने कस्टमर्स और शहरियों की आसानी के लिए सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद अहवाल इमरान खान की इस रिपोर्ट में। एंड डेवलपर्स की बढ़ती हुई कैटेगरी में पाकिस्तान के उभरते हुए ब्रांड सेंटेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने कस्टमर्स और शहरियों की आसानी के लिए सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। सेंटेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रीजनल ऑफिस ऑटोबान रोड पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में सेंटेक्स बिल्डर्स के CEO मेहमान खास जनाब सईद अख्तर, बोर्ड डायरेक्टर्स उमैर सईद, समीर सईद, शहबाज सईद और मुइज सईद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में रियल एस्टेट से वाबस्ता सरमायाकारों, सेंटेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कस्टमर्स, अमायदीन शहर और सहाफ़ियों समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर रीजनल हेड्स हैदराबाद सेंटेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जहांगीर खान और फराज अहमद का कहना था कि सेंटेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रीजनल ऑफिस के क़याम का मकसद हैदराबाद और अंदरून सिंध के कस्टमर्स और शहरियों को बेहतर सहूलत फराहम करना है ताकि अलॉटीज़ बआसानी बुकिंग और अक़सात की अदायगी समेत दीगर मालूमात हासिल कर सकें। सेंटेक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लामहदूद प्रोजेक्ट इस वक्त जारी हैं, जिनमें एल्पिन सिटी, एल्पिन रॉयल जिम खाना, एल्पिन ऑर्किड, एल्पिन मेगा मॉल, एल्पिन फार्म हाउस, जबकि नूरियाबाद में वाक़ अपनी नौयत का वाहिद इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट एल्पिन इंडस्ट्रियल सिटी शामिल हैं, जिनकी बुकिंग का आगाज़ हो गया है। तकरीब में CEO सईद अख्तर और बोर्ड डायरेक्टर्स ने केक काट कर ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह किया, जबकि इस मौके पर रंगारंग आतिशबाजी और पुरतकल्लुफ इशाइया भी पेश किया गया। कैमरामैन रिजवान जई के हमरा इमरान खान, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। GTA JUI फंक्शनल लीग ने जिले भर में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तमाम रहनुमाओं ने DCO घोटकी के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि जिला भर से GTA भारी अक्सरियत से जीत चुकी है, लेकिन रात के अंधेरे में ROs ने हमारे उम्मीदवारों के रिजल्ट जिस तरीके से किए हैं
आरओ ऑफिस में हम पहुंचे हैं, वहां पे पुलिस का अमला पहुंचा है, आरओ खुद पहुंचा है, पूरे अमले के साथ पहुंचा है, और पहुंचने के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। हम बुला रहे हैं इंशाअल्लाह जल्दी पीर साहब बुलाएंगे मीटिंग, उसके अंदर हम अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और दीगर जमातों के साथ मिलके हम ये, क्योंकि इस वक्त कोई सेटिस्फाइड नहीं है। बात कहा कि आप बाहर निकल नहीं सकते, हम लोग 53 से लड़ रहे हैं आज तक कभी, और हमने कहा कि भैया हम पोलिंग में नहीं जाते, लेकिन हम रोडों से तो घूम सकते हैं अपने आवाम को, लेकिन उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी। ये जो धांधली का सिस्टम शुरू हुआ है, ये भुट्टो साहब ने नहीं कहा था कि ये करे, ये भुट्टो की पार्टी को नहीं सिखाया गया था, ये पुराने लोग खड़े यहाँ पे और हमारा भी पुराना ताल्लुक है। ये आज इस हद तक धांधली हो रही है। अभी आपको बताएं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद में आवाम की सहूलत के लिए मालूमाती विंडो सेंटर के साथ साथ 13 कनाल अरासी की 4 दीवारी की तामीर का भी इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं फैसलाबाद से मोहम्मद रिजवान आजिज की ये रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद में आवाम की सहूलत के लिए मालूमाती और 1 विंडो सेंटर्स के साथ साथ 13 कनाल अराजी की 4 दीवारी की तामीर का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन और SE बिल्डिंग डिपार्टमेंट मोहम्मद शाहिद ने किया। इफ्तिताही तकरीब में वेलफेयर ऑफिसर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद डॉक्टर सरदार बाबर डोगर, स्टेट ऑफिसर राना अमजद अली, एक्सियन बिल्डिंग ब्रांच सायरा कमर, ऑडिट ऑफिसर तालीमी बोर्ड गुलफराज भी मौजूद थे। मज़कूरा मंसूबे पर तकरीबन 36 मिलियन रुपए लागत आएगी, जिसमें से 25 मिलियन 4 दीवारी के साथ साथ मालूमाती और फलाही सेंटर पर, जबकि 11 मिलियन में 1 विंडो सेंटर्स बनेंगे। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, मेट्रो 1 न्यूज फैसलाबाद। पंजाब फूड अथॉरिटी सियालकोट ने कार्रवाई करते हुए मुतादिद दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स की चेकिंग की। नाकस और गैर मयारी दूध फरोख्त करने की बिना पर भारी जुर्माने आयद कर दिए और मुजरे सेहत दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया। मजीद आपको बताएं, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी उज़मा शहजादी ने एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस गुजरांवाला अदील असलम की जेर निगरानी फूड सेफ्टी टीमों के हमरा DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून की हिदायत पर सियालकोट में मुतादिद दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स में हजारों लीटर दूध को जदीद टेस्टिंग आलात से चेक किया। मौके पर लिए गए नमूनों के रिजल्ट मयार के मुताबिक न आने की बिना पर सैकड़ों लीटर दूध को मौके पर तल्फ कर दिया और मालिकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए। और अभी आपको खबर देंगे झंग में साबिक वफाकी वज़ीर शेख वक्कास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से नून लीग हुकूमत को बड़ा धचका लग गया। शेख वक्कास अकरम ग्रुप ने PTI की हिमायत याफ्ता नवाज भरवाना की हिमायत का ऐलान कर दिया है। आपको मजीद खबर देंगे झंग में भी ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर गहमा गहमी जारी है। 2 हलकों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। झंग PP 127 से नवाज भरवाना तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी कंपेन के लिए सियाल शरीफ के गद्दी नशीन मैदान में आ गए। शेख वक्कास अकरम ने पीर कासिम सियालवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI के उम्मीदवार महर नवाज भरवाना की हिमायत का ऐलान कर दिया। कासिम सियालवी का कहना है कि हमारी दरखास्त पर वक्कास अकरम ग्रुप ने नवाज भरवाना की हिमायत की, जबकि साबिक वफाकी वज़ीर शेख वक्कास अकरम का कहना है पूरा ग्रुप नवाज भरवाना के साथ है। PP 125 का फैसला भी कासिम सियालवी के हुक्म पर होगा। चकवाल के कस्बा कलां में गटर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के अखराज से 2 मेहनतकश मजदूर बाप बेटा जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए बगैर गटर की सफाई करने और गटर में मौजूद जहरीली गैसों के 2 मजदूर काम के दौरान बेहोश हो गए, जिनकी दिल की धड़कन और सांस नहीं चल रही थी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। खबर शामिल करेंगे दादू से। दादू के इलाके जोही में ज़राई पानी की अदम फराहमी के खिलाफ काश्तकारों ने महकमा आबपाशी अमलदारों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। काश्तकारों गुलशेर रिंद, मोहम्मद लगारी, झेड़गाठी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा कि जोही के हिस्से का ज़राई पानी बंद होने से इलाके में लाखों एकड़ ज़मीन बंजर बन गई है, जिसके बायस काश्तकारों को भूख बदहाली को सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोही में ज़राई पानी फराहमी का भी मुतालबा किया है।
बहावल नगर के नवाही इलाके में घरेलू तनाजे पर झगड़े के दौरान डंडों और कुल्हाड़ियों के वार से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को रेस्क्यू 1112 इमदादी टीम ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। थाना सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मी होने वाले अफराद में इकबाल, रियाज और फैयाज शामिल हैं। चनाब नगर के इलाके में 62 नौजवान का साथियों समेत 15 साल बच्ची से ज्यादती का वाकया पेश आया। मुल्जिमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं। हवा की बेटी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मुल्जिमान ने तस्वीर और वीडियोस को वायरल करने की धमकी देते हुए 5 से 6 लाख रुपए तक की रकम भी हथिया ली है। मुतासरा बच्ची ने पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्त होकर मीडिया के सामने एहतजाज किया। मुतासरा खानदान का कहना है कि SHO असर खान बलोच मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बजाय हम पर सुलह के लिए दबाव डाल रहा है, जबकि मुल्जिमान ने कार्रवाई करने की सूरत में हमारे 7 साल बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी है। 5 तारीख को हमारे घर में मुल्ज़म और उसके साथ 3 और लोग थे। वो रात को आए और मेरे साथ ज्यादती की और मेरी वीडियो और फोटो बनाए और असले के जोर पर हमें मुझे ब्लैकमेल किया और हमसे पैसे भी लेते रहे और हमें उन्होंने बहुत तंग किया और इसके बाद जब हमने मना किया तो उन्होंने वीडियो और फोटो जो है वो सोशल मीडिया पर चढ़ा दी और लोगों को दिखाई। और हमने जब FIR करवाई तो पुलिस हमारा कुछ नहीं बनने दे रही। हमारा वज़ीर-ए-आज़म और DPO से मुतालबा है कि हमारे मुल्ज़म को गिरफ्तार करें, उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। अगर ये उन्होंने ना किया तो हम DPO के दफ्तर के सामने अपने आप को ख़त्म कर देंगे। 5 माह कबल जिला शिकारपुर के नापरकोट थाने की हुदूद से अगवा होने वाले नौजवान सादिक लाशारी की वीडियो डाकुओं ने जारी कर दी है। शिकारपुर पुलिस तमाशाई बनी हुई है, अब तक नौजवान को बाजियाब नहीं करवा सकी। मजीद देखते हैं कश्मीर से मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। कश्मीर कॉलोनी का रहायशी नौजवान सादिक हुसैन लाशारी गुज़श्ता 5 माह कबल शिकारपुर लापरकोट थाने की हदूद से मजदूरी करते हुए अगवा हुआ था। अब तक शिकारपुर पुलिस तमाशाई बनी हुई है। शिकारपुर पुलिस की जानिब से अब तक नौजवान सादिक लाशारी को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। अहले खाना गम से निढाल, बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल। तगारी करंदा मजदूर हा असल तगारी करंदा दग ते ला गिदाने करमपुर दे शहर के ला गिदाने छोकरे को हुन कल असां ॾिठा से नेटा में त सारे छोकरे को जंजीर मारे पन जंजीर जो मरंदन तो वो माल को जानवर को मरंदन मानू को नहीं मरंदे जो कोई जुल्म छोकरे ना करंदे पन अल्लाह दे वास्ते बिलावल भुट्टो को अर्ज करंदे पुतो सारा छोकरा तबलीग करें। शिकारपुर के ला गिदाने रहते दे गया असां जेड़े केड़े कुरान पाक चाचा थक पियो अल्लाह दे वास्ते खुदा वास्ते नडड़े बच्चे रोंदे पेनस ता कुरान पाक खणी विया ओडे SP दे ओ मुला हो एकड़ो कुरान खसे वरते जी SP बा इते कोने हलो पईते वञो वरी आया से लाखे वट लाख जी ने कुरान ते मां तवा के छोकरो बिंडियन में चराईंदम और धरणो आयो से उनन जो मुतालबो आ चौकियूं पटो असां गरीब चौकियूं असां कालो धाड़े हुकूमत जो पटाए सघंदा हूं। नौजवान सादिक लाशारी को गुज़श्ता 5 माह से जंजीरों से जकड़ कर रखा है। उसके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है। मेट्रो 1 न्यूज की स्क्रीन पर वाज़े देखा जा सकता है डाकुओं की जानिब से तशद्दुद किया जा रहा है। मेट्रो 1 न्यूज से बातचीत करते हुए सादिक हुसैन लाशारी की वालदा का कहना था कि हमारे पास तो खाने पीने को भी अब कुछ नहीं। एक ही नौजवान हमारा जो 500 से 700 रुपया मजदूरी करके बच्चों का गुजर सफर किया करता था, अब तो उसको भी 5 माह से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। उन्होंने हुकूमत वक्त सिंध गवर्नमेंट से IG सिंध और SSP शिकारपुर से मुतालबा करते हुए कहा कि फिलफौर सादिक हुसैन को बाजियाब करवाया जाए ताकि हमारे घर की एक बार फिर रौनकें बहाल हो सकें। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज कश्मीर। खबरों का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे मामू कांचन से, जहां पर 2 चोर मोबाइल टावर की बैटरियां चोरी करते हुए देहातों के हत्थे चढ़ गए। खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आपको खबर दे रहे हैं, इलाका थाना मामू कांचन के नवाही गांव पर पीर यकीन शाह के करीब मोबाइल टावर से 4 मुल्जिमान मोबाइल टावर की बैटरियां चोरी कर रहे थे कि देहातियों ने देखते ही शोर मचा दिया। दीगर देहाती इकट्ठे हो गए, 2 मुल्जिमान को पकड़ लिया, जबकि 2 मुल्जिमान कार सवार पर फरार हो गए। देहातियों ने दोनों मुल्जिमान की खूब दुर्गत बनाने के बाद उनको पुलिस के हवाले कर दिया है।
खैरपुर की खुसूसी अदालत ने 5वीं जमात के तालिब इल्म कहाना कुमार को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने के मुकदमे में 2 मरतबा फांसी और 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी खैरपुर की खुसूसी अदालत के जज इनाम अली मलिक ने 7 माह कबल 5वीं जमात के 11 साला तालिब इल्म कहाना कुमार को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने और उसको बेदर्दी से कत्ल करने के मुकदमे में 2 मुल्जिमान मुदस्सिर और इनाम शाह को 2-2 मरतबा फांसी पर चढ़ाने की सजा का हुक्म सुना दिया। अदालत के जज इनाम अली मलिक ने मुल्जिमान पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। मुल्जिमान को भारी सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान की जानिब से डीपीओ ऑफिस पाकपतन में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डीपीओ पाकपतन ने दरखास्त गुजारों से उनकी शिकायत सुनी और शिकायत के इजाले के लिए मुताल्लिक अफसरान को अहकामात जारी किए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में डीपीओ ऑफिस पाकपतन में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। आरपीओ साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने थाना ए डिवीजन का अचानक दौरा किया। उन्होंने ऑनलाइन रिकॉर्ड फ्रंट डेस्क पर दर्ज होने वाली शिकायत, थाने में सफाई सुथराई और हवालात का जायजा लिया। मजीद देखिए राना अरसलान की ये रिपोर्ट। आरपीओ साहिवाल डिवीजन तैयब हफीज चीमा ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल के हमरा थाना ए डिवीजन का सरप्राइज विजिट किया, जहां इन्होंने थाना ए डिवीजन का ऑनलाइन रिकॉर्ड, फ्रंट डेस्क पर दर्ज होने वाली शिकायत, थाना में सफाई सुथराई और हवालात का मुलाहिजा भी किया। दौरान मुलाहिजा आरपीओ साहिवाल डिवीजन तैयब हफीज चीमा ने एसएचओ और मुहर्रर को रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए हदायत दी और कहा कि थाना में आने वाले साइलिन की दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक फौरन कार्रवाई अमल में लाई जाए। गर्मी की शिद्दत के बायस थाना में आने वाले साइलिन के लिए ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। साइलिन में बुजुर्ग और खवातीन का खास ख्याल रखा जाए। इनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए इनके हल के लिए अहकामात जारी किए जाएं। बाद अज़ां आरपीओ साहिवाल डिवीजन ने तमाम पुलिस अफसरान से तैयब शहीद पुलिस लाइन्स में जराइम के खात्मे के लिए मीटिंग भी की। कैमरा टीम के साथ राना अरसलान, मेट्रो 1 न्यूज, उकाड़ा। एमक्यूएम पाकिस्तान राबता कमेटी रुकन डॉक्टर सफर कमाली कहते हैं, मीरपुर खास में बल्दियाती इलेक्शन आरओ का इलेक्शन था जिसमें हमारे उम्मीदवारों के नताइज तब्दील करके उम्मीदवारों को हराया गया। एमक्यूएम पाकिस्तान राबता कमेटी रुकन डॉक्टर सफर कमाली ने एमपी राशिद खलजी और दीगर डिस्ट्रिक्ट अहदेदारान के साथ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डॉक्टर सफर कमाली का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार कदीर मलिक के फॉर्म 11 में टैंपरिंग की गई और जीत को हार में तब्दील कर दिया गया, जबकि हमारे एक उम्मीदवार काशिफ अब्बासी के वोटों को रिजल्ट शीट में तब्दील किया गया, जिसके तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारे एक उम्मीदवार आसिम आफरीदी के वोटों को जाया करके एक वोट से जीत दूसरे उम्मीदवार को दी गई, जिसकी दरखास्त जब आरओ को दी तो आरओ टाल मटोल से काम ले रहा है, जबकि हमारी दरखास्त पर वोट चेक करने का लेटर जारी किया गया, मगर आरओ वक्त पर ऑफिस बंद करके बैठा रहा। तकरीबन 26-27 वोटों से जीत रहे थे। फिर उसके बाद में उस काउंटिंग को दोहराया गया और पोलिंग एजेंट्स को भी प्रेशर दिया गया। और जिस तरीके से जब यहाँ ऐसा होता है कि जब कुछ लोग बैठ के प्रेशर दे रहे होते हैं, कहीं कमजोर पोलिंग एजेंट भी होता है, तो उनको करके और उसके बाद 7 दफा उसकी काउंटिंग करवाई गई, जिसकी हमने शिकायत की। यहाँ पर डीआरओ, आरओ, तमाम लोगों को हमने शिकायत की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर हमें एक वोट से उस यूसी से भी हरा दिया गया, जो कि ये बात वाज़े तौर पर बता रही है कि पूरा इलेक्शन बाकायदा इंजीनियर्ड इलेक्शन था। इसमें आरओस का इस्तेमाल किया गया, इंतजामी मशीनरी इस्तेमाल की गई। यूसी नंबर 5 टाउन खादिम अली शाह, चेयरमैन मेहरान पंवर, ये हमारी हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार थे। ये उम्मीदवार भरपूर तरीके से जीत रहे थे। फिर इनके साथ यही किया गया कि इनके रिजल्ट को होल्ड किया गया, रिजल्ट नहीं दिया गया और फिर उसके बाद यानी इनके 35 वोट इनके रिजेक्ट किए और जब रिजल्ट दिया 3-4 घंटों के बाद तो उसमें एक वोट से इन्हें भी हरा दिया गया।
उम्मीदवार PP 90 इरफानुल्लाह खान और जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब मलिक शहाब अली खोकर की पंजगराई आमद पर इस्तकबाल किया गया। कप्तान के खिलाड़ी उम्मीदवार हल्का PP 90 दरिया खान इरफानुल्लाह खान न्याजी और जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब मलिक शहाब अली खोकर का पंजगराई की आवाम का शानदार इस्तकबाल, हजारों की तादाद में सपोर्टर्स ने जलसे में शिरकत की। इरफानुल्लाह न्याजी और मलिक शहाब अली खोकर का जलसे से खिताब करते हुए कहना था कि अवाम ने नामजद उम्मीदवार MPA PTI इरफानुल्लाह खान के हक में फैसला दे दिया। अभी आपको बताएं, कोटद्दू दायरा-दीन पन्ना PTI के उम्मीदवार नून लीग के खिलाफ PP 269 मखदूम ओन मोहम्मद भी मैदान में आ गए। ओन मोहम्मद ने कहा है कि अगर मुझे मौका दिया तो दायरा-दीन पन्ना की आवाम की खिदमत करूंगा। मज़ीद जानते हैं कोटद्दू से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ मोहम्मद याकूब से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी याकूब, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटद्दू के इलाका दायरा दीन पना में। इस वक्त मेरे साथ ओन मोहम्मद जो हैं, मखदूम ओन मोहम्मद, वो मेरे साथ भी मौजूद हैं। इस वक्त PTI का टिकट लड़ रहे हैं और नौजवान भी हैं, बाइखलाक भी हैं। PP 269 का PTI में शमूलियत अख्तियार कर चुके हैं। इनका जज्बा हमने देखा, इनसे पूछा, इनका कहना है कि इंशाल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह के हजूर कि अगर मैं बन गया तो इंशाल्लाह के दायरा दीन पना के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम है जो नून लीग हुकूमत भी ना कर सकी। इंशाल्लाह मैं वो काम सर अंजाम दूंगा और शहरियों के जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह उसको जो है फौरी मैं हल करूंगा। अगर पुलिस जो जुल्म ज़्यादती करती है, पटवारियान करते हैं, इसी तरह के काफ़ी मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको पूरा कंट्रोल करूंगा। इस वक्त मेरे साथ ओन भाई मौजूद है, मजीद मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा। सर माशाल्लाह आप इस वक्त PTI का टिकट लड़ रहे हैं 269 PP में, सर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले याकूब साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने दायरा दीन पना के मसाइल उठाए, उनको उजागर किया, लोगों तक पहुंचाया मैसेज, बहुत शुक्रिया। दूसरा मैं ये कहूँगा जी कि इंशाल्लाह हमारा प्लेटफार्म है इमरान खान साहब का प्लेटफार्म, PTI का प्लेटफार्म, हम वही विजन लेकर चले हैं। जो ये करप्ट हुकूमत कर चुकी है, इम्पोर्टेड हुकूमत, महंगाई कमर तोड़ चुकी है, महंगाई, गरीब, काश्तकार, किसान, हर बंदा तंग है सर। दिहाड़ीदार मजदूर जिसकी दिहाड़ी 500 से 600 रुपए है, वो बताएं कहाँ जाए। घी का रेट आपके सामने है, 560-70 रुपए घी मिल रहा है, 600 तक घी मिल रहा है, 620 तक। आटा देखें 2000 रुपए मन मिल रहा है, 2800 रुपए मन मिल रहा है। अब आप मुझे बताएं गरीब बंदा कहाँ जाए, वो क्या करे? हम इमरान खान साहब का विजन लेके आए हैं। इंशाल्लाह दायरा दीन पना में जितने भी दायरा दीन पना के मसाइल हैं, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ काफ़ी मसाइल हैं कि मैं गिनने लगूँ दिन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेड हुकूमत के जितने भी नुमाइंदगान थे उन्होंने कुछ भी नहीं किया आवाम के लिए, लिहाजा मैं वो मसाइल हल करने के लिए आया हूँ, अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, दायरा दीन पना के लोगों के साथ खड़ा हूँ, यहाँ बैठा हूँ मखदूम हाउस पे, सबके मसले मसाइल सुन रहे हैं, हल करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की ने और आप दोस्तों की मेहरबानी से। इंशाल्लाह अगर मेरे पास इक़्तिदार आ गया तो इंशाल्लाह आप देखेंगे दायरा दीन पना कैसे चेंज होता है। यहाँ उनको खुदा का खौफ नहीं है, मगर उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए कि इस महंगाई के तूफान को रोका जाए। जी लियाकतपुर में डाकुओं की फायरिंग से शहरी समेत ट्रैफिक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोहम्मद आसिफ को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजा में 3 नामालूम मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर ताजिर से 3 लाख छीन कर फरार हो गए। शहरी ने डाकुओं का पीछा करके लियाकतपुर सत्तार टाउन में घेर लिया तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिससे शहरी शदीद जख्मी हो गया। उधर लियाकतपुर शुमाली रेलवे फाटक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने मशकूक अफराद को रोका तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। सीने में गोली लगने के बाद ट्रैफिक पुलिस एहलकार मोहम्मद आसिफ को तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। पल्ला मंडी हवेली लखम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुख्तार अहमद ने जुबैदा सरिया NGO के ज़ेर एहतमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम अब्बास जट की इस रिपोर्ट में।
हवेली लखा गल्ला मंडी में जुबैदा सुरैया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद भट्टी ने किया। तकरीब में गल्ला मंडी के सदर हाजी शमशाद रहमानी, सीनियर नायब सदर अली असगर खान कलस, जनरल सेक्रेटरी नियाज अहमद कलिया, मियाँ साबर हुसैन फाजल का, मोहम्मद हनीफ रहमानी, पीर बिलाल अजहर, मुनीर अहमद कलिया, वाटर फिल्ट्रेशन के लिए खसूसी कावश करने वाले मुनीर अहमद कादरी समेत दीगर आड़ती भाइयों ने शिरकत की। इस मौका पर ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद भट्टी ने कहा कि साफ पानी इंसानी जिंदगी को महफूज बनाता है। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। शेख इरफान अल फतह ग्रुप के साथ मिलकर पंजाब के मुख्तलिफ मुकामात पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि फलाह के कामों में ज्यादा से ज्यादा अपना माल खर्च करें। मजीद उन्होंने कहा कि हवेली लखा गल्ला मंडी को रजिस्टर्ड करवाने में अपना कलीदी रोल भी अदा करेंगे। कबल मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी ब्रिगेडियर मंडी पहुंचे तो इनको जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां नछावर करके माला पहनाई गई। इस मौका पर खिताब करते हुए मियां मोहम्मद हनीफ रहमानी और सेक्रेटरी जनरल मियां नियाज अहमद कलिया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अल्लाह ताला की तौफीक से ये सारे काम होते रहेंगे। जिस तरह हमारे मेहमान खुसूसी अपनी टीम के साथ अवामी फलाही खिदमत के प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इस्तेकामत फरमाए और खिदमत खलक का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इनका कहना था कि हम गल्ला मंडी की तरफ से आपका और आपकी टीम का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। बाद अज़ां मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी ने सदर गल्ला मंडी मियां शमशाद अहमद रहमानी को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की चाबियां भी पेश की। शोरकोट सिटी के नवाहे इलाके में स्पेशल पर्सन को तालीमी सहूलियात देने से गवर्नमेंट पंजाब के जानिब से भाई भाई वेलफेयर के ताउन से सर्वे किया जा रहा है। इस वक्त हमारे तहसील रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज शोरकोट मोहम्मद अरसलान कादरी वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मोहम्मद अरसलान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कक्कीनो 2 में, जहाँ पर नाजरीन स्पेशल पर्सन जो बच्चे हैं जो अवाम की जो है मोहब्बतों से दूर होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एक जो अच्छा मिशन लेकर लाहौर से टीम आई है, बाई बाई वेलफेयर जो है उनके तामुन के साथ यहाँ पर स्पेशल जो पर्सनस हैं उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए, उनका कोई वजीफ़ा वगैरह लगाने के लिए, उनको तालीम के लिए जो है सर्वे किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो डॉक्टर यास्मीन साइकोलॉजिस्ट साहबा हैं जो लाहौर से तशरीफ़ लाई हैं। उनसे जानते हैं इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हम गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैं आई हूँ। वैसे मैं पोस्टेड हूँ यहाँ पे एज साइकोलॉजिस्ट स्पेशल एजुकेशन सेंटर शोरकोट में। हमें ये गवर्नमेंट ने टास्क दिया है कि बच्चों के अवेयरनेस, स्पेशल बच्चों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए और हम ये सर्वे कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एनरोल हो सकें और उनको फैसिलिटेट किया जा सके। और मैं बाकी भाई भाई वेलफेयर एसोसिएशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए यहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया और मेरे लिए बच्चे ऑलरेडी उन्होंने अवेलेबल हो गए थे बच्चे कि उनको कॉल्स की और वो आ गए और मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। शुक्रिया जी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो स्पेशल पर्सन हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनका तालीमी बजट वगैरह बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है। तो आपके बच्चे भी अगर कोई इस तरह हैं स्पेशल पर्सन तो यहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। जी। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद सुलेमान मंशा ने पुलिस के हमरा खान का डोकरा में खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 से ज़ायद यूरिया खाद की बोरियां जब्त कर ली हैं। खाद मौके पर ही किसानों में तकसीम कर दी गई। सुलेमान मंशा ने मीडिया टॉक में कहा कि जमींदारों को खाद की अशद जरूरत है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ शिकंजा मुकम्मल तंग किया हुआ है। महकमा माल, महकमा ज़राअत और पंजाब पुलिस के हमरा चेकिंग का अमल सख्त किया हुआ है। उन्होंने कहा स्पेशल ब्रांच पुलिस और दीगर महकमे अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जब्त शुदा खाद किसानों को सरकारी निर्खों पर जमीन की गुर्दवारी की नकल पर फरोख्त की जाएगी। और अब आपको बताएंगे सफदराबाद में 8 रोजा ऑल पाकिस्तान प्रीमियर लीग फ्लड लाइट टूर्नामेंट जारी है। मुल्क भर से 60 क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली सरदार इनामुल हक डोगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सफदराबाद के क्रिकेट स्टेडियम में ऑल पाकिस्तान प्रीमियर लीग फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। मुल्क भर से नामवर क्रिकेट के प्लेयर टूर्नामेंट में खेलने के लिए सफदराबाद पहुंच गए हैं, जबकि शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मैचेस देखने के लिए स्टेडियम आती है। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पीपी 143 सरदार इनामुल हक डोगर, नौजवान समाजी शख्सियत साबिक सदर इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग वसीम मुगल नसीर अहमद, ठेकेदार सीनियर सहाफ़ी एहसान इलाही जहीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।
पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 मुल्तान ने मुमकिन सैलाब से नबरदाश्त होने के लिए दरिया चनाब पर अमली मशकों का एहतमाम किया, जिसमें दीगर इदारों ने भी भरपूर शिरकत की। मजीद बताएं कि पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 मुल्तान ने मुमकिन सैलाब से नबरदाश्त होने के लिए डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मुल्तान डॉक्टर कलीमुल्ला, इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन एंड एडमिन इंजीनियर अहमद कमाल और इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद बिलाल की ज़ेर निगरानी दरिया चनाब पर सैलाब से निमटने की अमली मशकों का इनेकाद किया, जिसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, महकमा हेल्थ, पॉपुलेशन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और NGO समेत दीगर इदारों ने भी शिरकत की, जिसमें इन तमाम इदारों ने इमरजेंसी से मुतालिक पहले से तयशुदा जिम्मेदारियों के इजहार के तौर पर कैंप लगाए और अपनी दौरान सैलाब जिम्मेदारियों के हवाले से अमली मुजाहरा किया। अमली मशकों में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुल्तान राना अखलाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और फर्जी मशकों का मुआयना भी किया। हवेली लखा के करीब गिरदो और भूमन शाह तारीखी लिहाज से फन तामीर का एक शाहकार समझा जाता है, लेकिन आज मकामी आबादी ने इस गुरुद्वारा को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। हुकूमत पंजाब से फौरी इस्लाह अहवाल का मुतालबा रिपोर्ट कर रहे हैं हवेली लखा से चौधरी गुलाम अब्बास जट अपनी इस रिपोर्ट में। किला भूमन शाह हवेली लखा से तकरीबन 10 किलोमीटर की मुसाफत पर दीपालपुर हवेली लखा रोड पर वाक़या है। बाबा भूमन शाह 14 अप्रैल 1687 ईस्वी को दीपालपुर के इलाका बेलोरपुर में पैदा हुए। आप सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे बाबा श्री चंद्र महाराज के शागिर्द थे। किला भूमन शाह के फन तमीर का एक अजीम शाहकार समझा जाता था। पंजाब अकलीतों का जो है तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो बड़ी कोशिश रहती है, लेकिन अमली तौर पर ये आप देख रहे हैं कि ये किला भूमन शाह जो है ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। सफाई सुथराई, इसकी दीवारें, इसकी बिल्डिंग जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। खूबसूरत किला था, अब ये टूट फूट गया है, हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। काड़ा में ये हिंदुओं का एक अजीम विरसा दीपालपुर हवेली लखा रोड पे मौजूद है और इसकी 6000 एकड़ ज़मीन है जो महकमा औकाफ इसका पटा वसूल करता है, लेकिन ये इंतहाई ज़बू हाली का शिकार है और इस पर महकमे की कोई तवज्जो नहीं है। अगर तवज्जो दी जाए तो ये एक खूबसूरत विजिटर के लिए एक मुकाम बन सकता है। बाबा जी ने यहाँ पर मंदिर और मुसाफिरों के लिए सराय भी कायम की हुई थी। बाबा भूमन शाह ने यहाँ के लोगों को तालीम का सिलसिला भी शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता बाबा जी तमाम मज़ाहब के पैरोकारों में रूहानी पेशवा के तौर पर मकबूल हो गए। किला का एक बड़ा दरवाज़ा और 4 अंदरूनी दरवाजे होते थे जो रात 10 बजे तक खुले रहते थे और फिर बंद कर दिए जाते थे। रवायात के मुताबिक 17वीं सदी में बाबा जी की वफात के बाद जब इनको लाश को जलाने लगे तो लाश गायब होगी। अब यहाँ पर इनकी मुख्तलिफ समाधियाँ इस किला में निशानी के तौर पर मौजूद हैं, जिनमें दर्शन संतोख दास, हरभजन दास की समाधि भी यहाँ पर मौजूद है। बाबा भूमन शाह की वफात के बाद बाबा नरमल चंद उनके डेरे के गद्दी नशीन मुकर्रर हुए। फिर 1947 में तकसीम हिंद के बाद भूमन शाह के मुख्य सेवादार गिरधारी दास इंडिया के इलाके हरियाणा हिजरत कर गए और बाबा जी का डेरा वहां पर कैंप कर दिया। इसके बाद किला मकामी लोगों और महाजिरीन के कब्जा में आ गया और इसका रिकॉर्ड महकमा औकाफ के हिस्सा में चला गया। अब इस किला के अंदर सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात हैं। मकामी आबादी के लोगों ने इसको कुचरा कंडी में तब्दील कर दिया है और माजी की शानदार इमारत अब खंडरात में तब्दील होना शुरू हो गई है। मकामी आबादी के बच्चे यहाँ फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। DPO भक्कर सैयद अली रजा की हिदायत पर भक्कर पुलिस का गैर अखलाकी सरगर्मी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलव्विस मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना सिटी भक्कर पुलिस को मुखबिर की तरफ से फहाशी का धंधा करने वालों के खिलाफ इत्तला मौसूल हुई, जिस पर थाना सिटी भक्कर पुलिस ने महल्ला नसीर टाउन और मासूमाबाद में चलाए जाने वाले अड्डे पर छापा मार के 4 मर्दों और 6 औरतों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ थाना सिटी भक्कर में मुकदमा दर्ज कर दिया। DPO भक्कर सैयद अली रजा का कहना था कि जिला भर में भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और ऐसे लोगों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको अफसोसनाक खबर देंगे। चिन्योर थाना रजुआ के इलाके में रूठी बीवी को मनाने जाने वाले खाविंद को ससुरालियों ने मुबैना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ जख्मी जान की बाजी हार गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे कैसर भट्टी से। कैसर भट्टी, बताएगा ये वाकया कैसे पेश आया? अफसोसनाक वाक़या चिन्योड़ का नवाई इलाका रजुआ स्टात में नाराज बीवी को मनाने वाले शौहर पर ससुरालियों की जानिब से आसिफ को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। आसिफ पर मुबीना तौर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिस पर आसिफ का जिस्म झुलस गया। इसलिए जख्मी हालत में अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद फैसलाबाद अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया। यहाँ पर यूनिट में आसिफ जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने वाक़या के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी ठीक है कैसर भट्टी, आपका बेहद शुक्रिया। एक गर्मी की शिद्दत में इजाफा, दूसरा बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग से समंदरी की आवाम भी बिलबिला उठे। लोड शेडिंग के दौरान 12 से 14 घंटे से तजावुज कर किया, जिससे कारोबार तबाह होकर रह गए। मज़ीद जानते हैं समंदरी से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद ताहिर से। मोहम्मद ताहिर, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, दूसरे शहरों की तरह समंदरी शहर में भी अगर बात की जाए लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग में जो है वो बदतरीन इजाफा कर दिया गया। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, उसी तरह जो लोड शेडिंग का दुरानिया है वो 12 से 14 घंटे से भी तजावज़ कर गया, जिसके साथ साथ जो है वो आम शहरी के साथ साथ जो है वो कारोबारी हजरात भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सर, लोड शेडिंग में बदतरीन इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? लोड शेडिंग तो वाकई बहुत होने डई आ ते 24 घंटिया जो मेरा ख्याल 2 घंटे या 3 घंटे दिने बिजली आती है, रात में बंद ही रही, रात में मच्छर नहीं सौन देंगे। तो दिने काम करिए कि घर का चुल्हा भी ठंडा हो गया, कारोबार भी ठप्प हो गए। तो हुकूमत नूं ते साडा यही मुतालबा कि साडी बिजली पूरी करन ते साडा काम कारोबार चले। काम कारोबार होएगा तो असीं भी ईद करांगे, कोई खर्चा पानी तुरूगा घर का। मुलाजमां दे खर्चे, दुकान का किराया, बिजली का बिल वो ढेर आ जांदा ते काम उत्थे बिजली पूरी नहीं हुंदी। जी बिल्कुल, शहरियों का इस हवाले से यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का जो दुरानिया है उसको ख़त्म करे, इसको कम करे, ताकि हर अमीर गरीब का चूल्हा जो है वो आसानी से चल सके। जी कसूर में मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से DHQ अस्पताल की बच्चा वार्ड क़यामत सुगरा का मंजर पेश करने लगी। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे से भी तजावुज कर गया। लोड शेडिंग के बायस लाइट बंद होने की वजह से छोटे बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जनरेटर होने के बावजूद बिजली बहाल ना की जा सकी। मुसलसल लोड शेडिंग की वजह से बच्चा वार्ड में गर्मी के बायस बच्चों के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजों पर भी अस्पताल की इंतजामिया को होश न आया। बच्चा वार्ड नर्सरी में बिजली बंद होने की वजह से नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। बिजली न होने की वजह से मरीजों के लवाहिकीन हाथ वाला पंखा चलाने पर मजबूर हो गए। अब रुख करेंगे मानावाला का। मानावाला में महंगाई से तंग आवाम का कहना है कि फल सब्जियां तो दूर की बात है, अब तो आटा, घी और चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। इस हवाले से बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी। जी तो चौधरी माजिद भट्टी, बताइएगा वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है मानावाला में। मानावाला में अगर बात की जाए महंगाई की, तो यहाँ भी महंगाई के खिलाफ जिन जो है बोतल से बाहर आ चुका है। आए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, महंगाई का तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे लोग फ्रूट की तो बड़ी दूर की बात है, आटा, घी, चीनी से भी बहुत महरूम हो चुके हैं। ये महंगाई पिछली हुकूमतों ने तो जो किया सो इस हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये जितनी महंगाई हो चुकी है तो जो गरीब आदमी है उसका एक दिन का गुजर भी बहुत मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का यही कहना था कि गुजर बसर करना भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। फल या दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। यहाँ आटा, चीनी और घी भी जो है वो भी आम आदमी की दस्तरस से दूर हो चुका है। जी
पतों की यूटिलिटी स्टोर आवाम के लिए अजाब बन गया। चंद चीजों के रेट कम होने की वजह से खवातीन, बच्चे, बूढ़े 2 घंटे लाइनों में जलीलो ख्वार होने लगे हैं। वजीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। एक खातून शिद्दत की गर्मी में ज्यादा देर लाइन में खड़ी होकर बेहोश हो गई, जिसको फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। उसके साथ साथ यूटिलिटी स्टोर पर चोर भी सरगर्म दिखाई देते हैं। खवातीन को उनके पैसों से महरूम कर दिया गया। मजलूम खातून रोती रही, पुकारती रही। आस पास के शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत उस खातून को पैसे इकट्ठे करके दिए। शहरियों का वजीर आला पंजाब और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा है, खुदारा गरीब अवाम पर तरस खाएं। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको खबर देंगे खानेवाल से। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खानेवाल डेप्यूटी कमिश्नर शाहिद फरीद की जेर सरपरस्ती जिला भर में अशिया खुरनोश महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी आमिर, तफसीलात आपके पास से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हदायत पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की जेर सरबरस्ती एशिया खुर्दनोश की महंगे दाम में फरोख्त करने वालों के खिलाफ जिला भर में कार्रवाई जारी है। तो बात डिप्टी कमिश्नर सर से सर बताएगा कि आपने जो महंगे दाम में फरोख्त कर रहे हैं, जिला भर में कार्रवाई कर रहे हैं, कितनी कार्रवाई और कितनी FIR दी गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और जो महंगाई कर रहे हैं अशिया ज़रूरत की, उनके ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई जारी है। इस महीने में कल तक हमने तकरीबन 7400 मुख्तलिफ़ जगहों पे इंस्पेक्शंस की हैं। हमारे पास ज़िले में 31 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं और वो 31 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स ने मुख्तलिफ़ रेड्स में जो मैंने 7400 इंस्पेक्शंस आपको कही हैं, उन रेड्स में उन्होंने तकरीबन कोई 20.5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया है। मुतअद्दिद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई हैं और कुछ लोगों को जेल भी भेजा है। चीफ मिनिस्टर साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि किसी भी सूरत में हम अलाउ नहीं करेंगे किसी को कि वो ओवर चार्जिंग करे, वो अशियाई ज़रूरत को मसनूई तौर पर महंगा करे या लोगों की ज़िंदगी में परेशानियाँ पैदा करे। तो हमारी टीमें दिन रात इस कोशिश में लगी हुई हैं और हम आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि जहाँ पर भी उनको कोई मसला हो वो कीमत ऐप के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज कराएँ और हम फिलफौर उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये बताइएगा कि अगर जो शिकायत लेके आता है, आपके दरख्वास्त देता है, तो आपका टोल नंबर क्या है? तो जान के शहर को पता हो इस बात का। ये कीमत ऐप है, एक ऐप है, मोबाइल ऐप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। उसमें हर ज़िले के बारे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं, हर तहसील के बारे में शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। तो हर तमाम शहरियों से हमारी दरख्वास्त है कि इस ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन्स में डाउनलोड करें और वहाँ पर अपनी शिकायत ओवर चार्जिंग के बारे में दर्ज करवाएं। उसके ऊपर हम 24 घंटे के अंदर एक्शन लेते हैं। आज जी बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद का यही कहना था कि खानेवाल पूरे ज़िले में जो ओवर चार्जेस करेंगे शेख खुर्दनोश की, उनके ऊपर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ जुर्माने भी और FIR भी दी जाएंगी। जी GDA JUI फंक्शनल लीग ने जिला भर में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। तमाम रहनुमाओं ने DCO घोटकी के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि जिला भर से GDA भारी अक्सरियत से जीत चुकी है, लेकिन रात के अंधेरों में ROs ने हमारे उम्मीदवारों के रिजल्ट जिस तरीके से तब्दील करवाए हैं कि धांधली लफ्ज भी छोटा रह गया। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए Metro 1 न्यूज़।